Yes, please. Yeah, thank you very much and for arranging this session. And I'm really obliged and humbled to see a large number of participants and particularly all the overseas chapters. And I can see the representation from Bahrain. I can see the representation from UK, Dubai, and from Pakistan. So really thankful और I'm really impressed कि लोग इस दफ़ा काफ़ी scrutiny कर रहे हैं. In fact, they are deep diving and doing a critical assessment of the candidates क्योंकि काफ़ी awareness create हो गई है और ये बहुत अच्छा है. It's not a formulated council. तो इस दफ़ा जो भी council में लोग आएंगे मेरे ख्याल में जो जिस तरीके से मुझे vibes हैं काफ़ी different एक environment create होगा इंशाल्लाह. तो एक vibrant चीज़ होगी. तो कमिंग टू माय इंट्रोडक्शन फर्स्ट, जिस तरीके से आपने कहा था, आई थिंक इस तरह करते हैं कि इन 5 मिनट्स आई डू माय सबमिशन एंड देयर आफ्टर ओपन टू क्वेश्चन आंसर्स और उसमें फिर मैं आई विल कवर अदर टॉपिक्स आल्सो जो मेरे पास भी चीजें हैं जो मैंने सुनी और काफी हैं. सो माय नेम इज अब्दुल रब एंड आप सबको पता ही है एंड विद 24 years post qualification experience, 8 years with EY, 18 years with Deloitte. And in the last 5 years, I was a country head for the advisory services in Deloitte, Pakistan. And thereafter, after November, I submitted and joined in June 2021. I joined this Odex Consulting as a managing director advisory and the private equity and the transactions and all sort of advisory. So my connectivity with the profession and is there in terms of just the role has changed from a professional firm to a limited company, public unlisted company, but the same services which I'm doing for the transactions, advisory, and particularly strategy and transactions. In terms of my services to the institute, I was the elected member of the SRC for the 2 consecutive terms. At present, still the secretary of the Southern Regional Committee, and served the committee twice as its chairman, secretary, and as a CPD convener. So this is the broad understanding of my profile. अब सवाल है कि आप elections क्यों करना चाह रहे हैं? So simple is my objective is to help the members succeed, and reason being, after spending 24 years in the profession, directly dealing with the firms, with the international clients, large networks, dealing with the government, all the privatization transactions, I think I was involved in all the large transactions that took place in Pakistan, particularly in the banking sector. जब आपने इतना exposure ले लिया है, तो you can add value at least to the affairs of the institute, members को एक support करके, and you can take the profession forward. Plus, I think it's something you have to give back to the profession and the society also. एक वो passion होता है, तो उसमें I am contesting this election. And I think now what you want, should I be covering my salient features of my agenda points or like my vision, or you want to come up with the questions and then I'll be answering those questions? सर आप अपना salient point बताएं कि जो मतलब मेरा बड़ा simple है. I have like, you can see as also circulated on the WhatsApp also. There are 4 points जहाँ पे मैं समझता हूँ कि where we should be like focusing and first we have to identify our burning platforms. हमें issue है कहाँ का या हमारे क्या challenges हैं. अच्छा, एक challenges हैं internal और एक है वो environment की वजह से आपके साथ create हो गए हैं. पाकिस्तान के macro and microeconomic factors and particularly the currency devaluation. ठीक है, आपके export की आप बात करते हैं, but still there are challenges, आपके margins, और आप 2 साल बाद ये situation जो मेरा जो एक्सपीरियंस आता है वो बिकॉज ऑफ माय स्ट्रेटजी एंड एडवाइजरी, मैं फ्यूचरिस्टिक चीजें जरा देखता हूँ. तो इन टर्म्स ऑफ वे फॉरवर्ड अगर आपकी ये चीजें चेंज होती हैं तो आई सी द चैलेंजेस, और उसको इम्पैक्ट करने के लिए हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करेंगे. आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपके इंस्टीट्यूट की पॉलिसी और स्ट्रेटजी को भी इम्पैक्ट करेगा. सो एंड विद द रीसेंट पेंडेमिक और एक्सपोनेंशियल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, how you're going to address this is also very important. So मेरा जो पहला है, like it's obviously the governance and first is the investment in people. अगर आपके पास लोग ठीक नहीं हैं, लोग एक विजन के साथ नहीं परफॉर्म करेंगे, I think there will be problems.
So first is the governance and improving the governance at the institute level. I'm in strong favor of having a secretariat, strong secretariat with the visionary people, not saying like 60 years and spending their second inning or third inning after their retirement or near to their retirement age. आप लें 50-55 से नीचे की age में who have the like mileage and can do like perform and with adequate experience and bring up with a strong secretariat. Education is a priority because जितनी भी चीजें हमने अब तक mention की हैं कि ट्रेनिंग में आपका प्रॉब्लम आ रहा है, आपके लोगों को induction में there are issues. So why we are not raising our bar in terms of our education? आप syllabus का annual review करें, जितनी चीजें आपकी technology की changes हो रहे हैं, you people have seen the like syllabus of other accounting bodies also, और international advancement के साथ है. So otherwise आप देखो talent retention बहुत मुश्किल होगा. So I am in strong favor of investment in education. One thing I'm not able to understand आज तक ये क्यों नहीं हुआ. Why can't we have a leadership academy or accounting school of excellence? मैं ICAP को नहीं कहता आप चलाओ, but you can have it under a JV or PPP mode, which is a standard model. आप लोग सब इंटरनेशनली देखते हैं, PwC की एक लीडरशिप एकेडमी है, Deloitte यूनिवर्सिटी है. So why can't we have a account leadership academy at ICAP? ये मुझे सवाल पूछना भी होगा. And after that, ये सिर्फ एक एकेडमी लीडरशिप डेवलपमेंट की नहीं हो, आप इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी दें. एंड प्रोबब्ली आसिफ कैन आल्सो प्रोवाइड हिज इनपुट बिकॉज ऑफ हिज सऊदी एक्सपीरियंस, कि आप वहां पे एक बैक एंड पे टेक्नोलॉजी लाइक सर्विसेज को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करें, बिकॉज पाकिस्तानी चार्ट अकाउंट्स कैन प्रोवाइड टेक्निकल इनपुट आल्सो. वो आप बैलेंस करें. सो आई थिंक second is the investment in education infrastructure as well as in investment in curriculum and the people also. आप leadership excellence की बात करते हैं, उसके लिए आपको लोग चाहिए होंगे. एक important aspect ये है. तो I've talked about the governance. Second is the education. Third is the technology. Technological changes अभी इतने ज़्यादा हो गए हैं, and I think it's important to have a digital lab at like for the members as well as for the SMPs, a general membership and the SMPs also, because situation ये है. And I wonder because मैं on daily basis I'm looking after in new company, और उनके साथ जितना आप टेक्नोलॉजी की कंपनीज की आप बात करते हैं, स्टार्टअप्स में आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो डू वी हैव द नेसेसरी कैपेबिलिटीज कि आप उसको ऑडिट करें, उसके साथ उसको एडवाइस कर सकें, उसके मॉडल की अंडरस्टैंडिंग ले सकें, रेवेन्यू ड्राइवर्स को समझ सकें. I think for that you need to upscale the people. Fourth is the training and capacity building of the existing members. ये बहुत जरूरी है. जब तक आप capacity building आप नहीं करेंगे लोगों की, जो पुराने members हैं उनको up to speed लाएं new technology के साथ, because you see membership को जिस तरह अभी शुरू में आपने कहा कि we have a membership of like 10,000, तो उसमें से अगर 5,000 के बाद के लोग हैं, 5 to 7,000 के लोग हैं, उनको एक जरूरत है उनको अप टू स्पीड लाने के लिए एक प्लेटफॉर्म इकोसिस्टम, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देने की फॉर देयर ट्रेनिंग्स. सो उसके बगैर अगर आप ये कहें कि हमारे लोगों को आर्टिकल्स नहीं मिल रही, अगर हमारे एक ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर ही वो चीजें उनको हम इम्प्रूव कर चुके होंगे, आई थिंक देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप आवर पीपल गोइंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड. और ये चीज है. अदरवाइज होगा ये कि पाकिस्तान में टैलेंट रिटेंशन जो है ना वो बहुत मुश्किल होगा. ये जो एग्जिस्टिंग है उनका टैलेंट रिटेंशन, और बाद में आप टैलेंट को अपस्किल करके एक लेवल पे लाना, बात बहुत अच्छी है जी. मार्केटिंग भी हम करें, बात बहुत अच्छी है जी, गवर्नेंस इश्यूज को भी एड्रेस करें, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिस पे हम बात करेंगे. अभी जिस तरह आपके सवालात आते हैं तो मैं उसको और भी कवर करूंगा. गवर्नमेंट जॉब्स की भी मैं बात कर सकता हूँ, ये अंडरस्टैंडिंग है. सेकंड इज के एक्सपेंशन. एक लास्ट पॉइंट के बाद फिर आई विल ओपन द फ्लोर टू क्वेश्चन आंसर्स. मैं ये समझता हूँ कि ठीक है ऑर्डिनेंस में जो चेंजेस आ रहे हैं, बट व्हाई वी आर लिमिटिंग आवरसेल्फ जस्ट टू ऑडिट एंड टैक्स. अब एडवाइजरी की इतनी चीजें हैं, कंसल्टिंग की इतनी चीजें हैं, व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ टैबू एरिया, और हम अपने फर्म्स ठीक है कर रही हैं, बट एक अकाउंटेंट्स में जो इशू ये है कि वी कंसीडर कि वी कैन डू एवरीथिंग विदाउट स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्म्स के अंदर अभी तक ऑनेस्टली स्पीकिंग बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस
सिर्फ 4-5 फर्म्स के अंदर ये चीज हुई है, बाकी सब चीजें वो एक मिक्स सिचुएशन में होता है। तो उसी से आपके क्वालिटी इश्यूज भी आते हैं और फिर डेप्थ नहीं आती प्रैक्टिस में। सो यू नीड टू इन्वेस्ट एंड पुट द डेप्थ इन द प्रैक्टिस, और वो उसी तरह आएगी कि जब आप या तो ऑडिट ओनली फर्म्स की बात करें या फिर आप पार्टनरशिप बेस की एक्सपेंड करने के लिए अदर प्रोफेशंस को एक लिमिटेड उसमें अलाउ करें। बिकॉज अगर दूसरे डिसिप्लिन का लोग हैं जो लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने भी किया, कुछ दिन पहले एक सर्कुलेट भी हुआ था, और बाकी जगहों पे भी अलाउड है। अदरवाइज इफ यू आर गोइंग फॉर अ लिमिटेड कंपनी सेटअप इन पाकिस्तान फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, तो उसके लिए फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट है कि अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस इशू करनी पड़ेंगी। दिस इज माय सबमिशन। आप ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रब साहब, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव थी। और जैसा कि आपने बताया कि ट्रेन करने के लिए कि जो ख़ास तौर पे जो है हमारे मेंबर्स को ट्रेन करना, और ख़ास तौर पे जो टेक्नोलॉजी आ रही है, ज़ाहिर बात है जो आप दो चीज़ें हैं, दो पॉइंट। एक पॉइंट तो ये है कि आप जो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है, जैसा कि हम फॉरसिबल फ्यूचर में देखते हैं कि जो ऑडिट और अकाउंटिंग के जो अभी जो करंट प्रैक्टिस है वो ऑलमोस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है, जिसकी मिसाल मैं बताता हूँ कि हम दुबई एयरपोर्ट से, दुबई एयरपोर्ट के अंदर 5 लोग अकाउंट रिसीवेबल के काम करते थे। अब उन्होंने अकाउंट रिसीवेबल कोई आदमी नहीं है, एक भी बंदा नहीं है, सिस्टम इज जनरेटिंग दैट वन। उन्होंने एक फॉर्मेट दे दिया है आपको, आपको ईमेल आती है, उस फॉर्मेट को आपको इनवाइस करनी होती है, वो इनवाइस को रिसीव होती है, जो इनवाइस ऑटोमेटिकली सिस्टम बुक कर लेता है, ठीक है। और अब जो ORCs वगैरह हैं जो रिकॉर्डिंग वाला के लिए, वो बिल्स लेके आता है, वो स्कैन करता है, वो एंट्रीज कर देता है, जो पिक्चर भी अब रीड कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने जो बनाया, तो इट मीन्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपना जो सिलेबस है, जो करंट जो आने वाले लोगों के लिए हमें अपना सिलेबस चेंज करना होगा, ठीक है। जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो भी सिलेबस है कि जो जो टेक्नोलॉजी बेस जो आएगा, मैं आजकल के दौर में ये बोलता हूँ कि जिस तरीके से इंग्लिश इज अ कॉमन लैंग्वेज, इसी तरीके से टेक्नोलॉजी इज अ कॉमन लैंग्वेज। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं आती तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे। और जो पुराने लोगों को, जैसे आपने बताया कि उसके लिए आपने जैसा कि किया है कि आप ट्रेनिंग्स कराएंगे और उनको ऑनलाइन, यानी कि उनको उस लेवल पे लेके आए कि वो बाकी लोगों के साथ कम्पीट कर सके। तो ये दो चीजें, इसके बारे में आपकी क्या राय है कि टेक्नोलॉजी, स्टार्टिंग द टेक्नोलॉजी, खुर्रम भट्टी साहब ने जैसे पहले बोला कि खुर्रम भट्टी साहब भी हैं, तो क्या इस टेक्नोलॉजी का सबसे पहले हम इस्तेमाल आईकैप से करें, करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि आईकैप एक इंस्टीट्यूट है जिससे आई थ्राइव और आपने दूसरी चीजें स्टार्ट करनी है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने जो मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली जितना मैं इनपुट दे सकता हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे दे रहा हूँ। बिल्कुल, आप 8 साल आप SRC में रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नॉट आपका नॉट ओनली नॉट एक्सपीरियंस ओनली बहुत होगा। SRC। देखिए, SRC हैज गिवन मी इनसाइट over the operational methodologies of ICAP and an idea about the challenges ahead. लेकिन जो मेरा जनरल कमर्शियल एक्सपीरियंस है, दिस इज फ्रॉम दी लार्ज इंटरनेशनल नेटवर्क्स एंड द वास्ट क्लाइंटल जिनके साथ मैंने डील किया है, एंड आई कैन कमेंट ऑन दैट। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंजेस हो रही हैं, आपके पास वो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी आपने डेवलप की है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी उस लेवल पे सोफिस्टिकेटेडली डेवलप ही हमने नहीं की है, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिचुएशन ये है कि इफ़ यू हैव लार्ज 3 अकाउंटिंग फर्म्स इन पाकिस्तान जो अपने नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर्स को लेवरेज करेंगी, वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग आ जाएगी। वो आएगा तो फिर आपको इंटरनेशनल नेटवर्क्स एक चार्ज करेंगे लोकल फर्म्स को, और वो फिर क्लाइंट को पास ऑन करेंगे। डू द क्लाइंट हैव द कैपेसिटी टू पे? नंबर 1। सेकेंड इज कि या फिर आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बाहर से इंपोर्ट करेंगे, वो भी आपके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। अदर देन द इंटरनेशनल फर्म्स जो नेटवर्क की हैं यहाँ पे, बाकी फर्म्स वो किस लेवल तक अपने लोकल प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करेंगे, दैट आल्सो हैज टू बी सीन। लेकिन जो SMPs और जनरल मेंबर्स हैं प्रैक्टिस के, उनको कहाँ से मैं टेक्नोलॉजी आप ला के देंगे? तो होना ये चाहिए कि आईकैप इसमें इनिशिएटिव लेके एक डिजिटल लैब के साथ इसको इनिशिएट करें, और वी शुड ट्रेन द मेंबर्स ऑन द डिजिटल टेक्नोलॉजी साइड। देखें, डेटा एनालिटिक्स और BI पे कोर्सेज कराना इज नॉट समथिंग कि जिसकी बेसिस पे मैं डेटा एनालिटिक्स कर सकता हूँ। मैंने 1996 में, 1998 में ये ACL वगैरह पे बहुत अच्छी तरह काम किया हुआ है। आई नो कि ये डेटा हैंडलिंग वगैरह ये चीजें कैसे मैनेज हो रही हैं, जो बिग डेटा की साइंस के। अब सिचुएशन ही बदल गई, वो सिस्टम आपके रेवेन्यू को कंप्यूट कर रहा है, आप
कोई ऑटोमेशन के बगैर आपकी कोई चीज नहीं चल रही। आप तो दुबई में चीजें देख रहे हैं, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग में काम हुआ है वहां पे, इट्स फिनोमिनल मिडल ईस्ट में। वो और वो रिफ्लेक्ट हो रहा है जो वेस्ट में हो चुका था। उसके लिए यहाँ पे आपको डिजिटल लैब को डेवलप करना होगा, आप लोगों को ट्रेन करें, आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी फॉरेन ट्रेनर्स में, और आपको कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च करने होंगे। एंड वी नीड टू हैव इट मैंडेटरी फॉर द एसएमपीज। अब आई डोंट नो कि ये मेरे थॉट्स हैं, ये किस हद तक ये प्रैक्टिकल हैं और बाकी काउंसिल का किस तरह व्यू आएगा इसमें, बट यू नीड टू एलोकेट सर्टेन आवर्स। लेट्स से आई से कि मेरी जी 100 आवर्स की डिजिटल ट्रेनिंग आपके लिए मैंडेटरी है, और उसके लिए आपने कोर्स डिजाइन किया, एंड टॉप ऑफ द लाइन कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स विच दे हैव टू लाइक परफॉर्म। अदरवाइज प्रोफेशन में आप डेप्थ आती जाएगी। देखिए हर साल आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लोगों को ट्रेन करने के लिए, अदरवाइज वो इतना गैप आ जाएगा कि फिर आप एक यू विल बी हैविंग साइलोज इन द फर्म। मैं जिस तरीके से, मैं मतलब हम सब अपने ही हैं, और मैं कह सकता हूँ कि आई कैन नॉट हैव लाइक वी कैन नॉट हैव अ प्रोफेशन जिसमें 4 कास्ट हो, कि जी वो मेरा नंबर 1 ए ग्रेड ये है, मतलब बरेमन ये है, और बाकी दूसरे कोई और डिफरेंट उसके हैं। ये हाउ टू इक्वल पैरिटी, अदरवाइज आप डेप्थ क्रिएट नहीं कर सकोगे, और फिर वो मार्केट जो है ना वो इतनी ज्यादा सैचुरेट हो जाएगी कि फिर कंपटीशन में लोग काम नहीं कर सकेंगे। फॉर दैट यू नीड टू, ICAP हैज टू इन्वेस्ट इन द ट्रेनिंग ऑफ द मेंबर्स। अगर जिसने अभी थोड़ी देर पहले कोई खुरम कह रहा था इतने फंड्स हैं, आप थोड़ा एक ट्रेनिंग का बजट रखें, डिजिटल ट्रेनिंग का बजट रखें, उसमें आप कराएं, डिजिटल लैब बनाएं, लीडरशिप एकेडमी बनाएं, और दोनों चीजों को करके आप आगे लेके चलें। मुझे इसमें इशू समझ में नहीं आता कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग एनी इनिशिएटिव इन दिस डायरेक्शन। डिजिटल लैब इज नॉट समथिंग, जो अभी भी चीजें लॉन्च हुई हैं, ये डेटा कोर्सेज और ये लोकल ट्रेनिंग से काम नहीं होगा। वी नीड टू स्केल अप द गेम। बैंक्स जिस तरीके से कर रहे हैं, आपका एक साउथ अफ्रीका में स्पेलिंग गलत होती है, आपका फंड ट्रांसफर नहीं हुआ, अदरवाइज जो स्कैंडल हो रहा था बांग्लादेश में और पाकिस्तान में, वो कितना बड़ा था आपको पता है। हैकर्स आपके बैठे हुए आपके सिस्टम पे बैठे हुए हैं। आपको बैंक्स के सिस्टम में डेटा उसको मैनेज करने के लिए यू नीड टू हैव कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, और वास्ट स्केल पे करानी होगी। ये प्रॉपर, ये IFRS और अकाउंट टैक्स स्टैंडर्ड से बाहर निकलना होगा प्रोफेशन में, अदरवाइज ये चीजें नहीं होंगी। ये आप किसी को भी काउंसिल में ले आए, मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप आर्ट में किसी को भी ले आए, लेकिन ये बात है जो मैं कह रहा हूँ, ये आपको हर जिसने भी आना होगा, दिस द नीड ऑफ द डे। इसके करे बगैर आपका प्रोफेशन आगे नहीं बढ़ सकता। मैं इस बात के नतीजे पे हूँ। मुस्तजाब, ये क्वेश्चन है। सर एक सवाल है, आसिफ भाई ने भी जो एग्जांपल दी, आसिफ भाई ने दुबई एयरपोर्ट की दी है, और यूएई इज वेरी एडवांस इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग। मेरा सवाल ये है, ICAP इंडस्ट्री से इनपुट ले रहा है? आई मीन क्या हमारी इंडस्ट्री रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए इन सिस्टम्स पे? बिकॉज आप अगर कराची या लाहौर में बैठे हैं तो शायद आपके पास बड़े बड़े नाम हो, लेकिन आपकी जो मेजर चंक है इंडस्ट्री का, फॉर एग्जांपल अगर मैं पंजाब की बात करूं तो वो गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, the people have a lot of money but their mindset was never like कि वो इन्वेस्ट करेंगे इन चीजों में। अब मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन मैं आपको डीपली इसको मैं आंसर कर सकता हूँ, बिकॉज मैं मतलब एक कराची पाकिस्तान में मेरा मतलब सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, सिर्फ हाँ, एक जुमला कर दो। रखूंगा। जो आप माय कंप्लीट करो क्वेश्चन फिर है, मैं बताता हूँ। आप कंप्लीट करो मैं फिर मैं बताता हूँ। नहीं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन फ्रेज करना चाहता हूँ। क्वेश्चन ये है कि ICAP का लॉयजन है इंडस्ट्री के साथ? आप मैं हम आपको जो भी बातें दोनों कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ ना। देखें, इनके लाइजॉन कितना है या नहीं है, ये मुझे अभी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने किसी काउंसिल मेंबर में, यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, जैसे अभी मेरी जो इंटरेक्शन है वो ज्यादातर व्हाट्सएप ग्रुप पे। किसी ने कहा नहीं जी ये बात अभी हम नहीं कर सकते, वो जिस पे चला अपने ख्याल में कुछ दिन पहले, वो खालिद रहमान का कुछ कोर्स था, उन्होंने कहा नहीं मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता किसी बात पे। रिजवान बनाई और उनका मैंने कुछ एक ऐसे स्किट सुना था, वो एक लाइन। तो अब वो बातें मुझे नहीं पता कि किस लेवल तक हैं और किस तरह, आई एम श्योर वो कर रहे होंगे इंडस्ट्री की रिप्रेजेंटेशन में भी। लेकिन देखें, आप करें या ना करें, अगर आज आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया तो फिर आप जो है मतलब वो एलन मस्क का है ना कि अगर चेंज नहीं आप करोगे तो ऑल्टरनेट इज अ डिजास्टर। तो फिर आपको आप कर नहीं सकोगे कुछ भी। और जहां तक आपकी बात कैपेसिटी और क्लाइंट की, तो भाई क्लाइंट कर ही रहा है। पाकिस्तान में मैंने सारे ग्रुप्स के साथ मेरा इंटरेक्शन है, मुझे पता है कि क्या इनके नीड्स हैं। दिस इज द थर्ड जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर दैट आर वर्किंग इन पाकिस्तान। ठीक है, वो सब लोग बाहर से पढ़ के अपने वेंचर्स को यहाँ सेटअप किए हैं। आप तो पाकिस्तान में सिर्फ एग्जांपल देखिएगा, लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शेल कंपनीज को लेकर टेक्नोलॉजी कंपनीज में कन्वर्ट किया है। देयर आर एग्जांपल, सिस्टम लिमिटेड, आपको मैं 2 नाम बता रहा हूँ, लिस्टेड कंपनीज हैं, सिस्टम लिमिटेड, एवेंसियन। आप देख लें इस वक्त कितनी इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में जाके इवन मिडिल ईस्ट तक में उन्होंने इनरोड्स किए हैं। रिसेंटली अ न्यू कंपनी सर्विस फैब्रिक हैज बीन बॉट इन बाय एवेंसी गनी, आई नो।
G3 टेक्नोलॉजीज के नाम से यहाँ आए हैं। तो टेक्नोलॉजी में तो इन्वेस्टमेंट हो रही है, नंबर वन। सिस्टम्स में आपकी चीजें चेंज हो रही हैं, ऑटोमेशन पे जा रहे हैं, बिकॉज इंडस्ट्री क्या देखती है, इंडस्ट्री देखती है मुझे कॉस्ट इफेक्टिव क्या पड़ रहा है। उनको अगर ऑटोमेशन कॉस्ट इफेक्टिव पड़ रही है तो वो ठीक है। देखो जनरेशन एक्स और जनरेशन जी को ब्रिज करना आसान नहीं है, उसमें बहुत सारी जनरेशन आएंगी। जब आपने शुरू किया होगा आपने शायद देखा हो 486, 386 या फिर आपको लैपटॉप्स मिले होंगे, आज वो उसका भी जमाना नहीं है। आप आज आईपैड और स्मॉल आईपैड्स के बगैर बात ही नहीं करोगे। दिस इज द चेंज। उस चेंज को लाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज विदाउट अ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट आपकी चीजें नहीं होगी। और इंडस्ट्री करने के लिए तैयार है और इंडस्ट्री काम यही कर रही है। कोई इस वक्त क्लाइंट जो है सैप खाना और सैप के नीचे की बात नहीं कर रहा। शहजाद विल एंडोर्स मी, जो अकाउंटिंग सिस्टम्स में लोगों ने अभी इन्वेस्टमेंट की है, आउटसोर्सिंग का मॉडल है, कॉस्ट, अदरवाइज कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज्यादा चेंज हो रही है कि वो मैनुअल में इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं सकते। एंड आज आप मुझे, आज हम एक हफ्ता, अब तो खैर 2 दिन रह गए, अब अगले जब ये काउंसिल जब 2025 में व्हेन यू विल बी हैविंग अ डॉलर ऑफ अराउंड 200 प्लस 220 या 210 या अराउंड डॉलर, अगर आप ये देख रहे होंगे, आप खुद जरा एक सिनेरियो को 4 साल बाद का प्रोजेक्ट करके देख लें, व्हाट वेयर यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ बिजनेस। आपके मार्जिन जो हैं वो, आपकी टॉप लाइंस तो बढ़ेंगी बट मार्जिन आपके इतने स्क्वीज हो चुके होंगे कि विदाउट अ टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट लोग अपना काम नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए बिजनेस की नीड्स को एड्रेस करने के लिए अकाउंटेंट को बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर आपको टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। और ये अकेला कोई नहीं कर सकता, इसलिए इंस्टीट्यूट के लेवल पे ही हो सकता है। इंस्टीट्यूट ही एक विजन क्रिएट करके उसमें पेनिट्रेट करे तो लोगों को, मेंबर्स का भला इसी में है। ये मेरा सबमिशन है। सरमद खान। ग्रेट सर, थैंक यू। आसिफ कलीम साहब पे 1 मिनट जरूरत है। आसिफ कलीम साहब प्लीज। मेरा सवाल है। नहीं, आपका सवाल क्यों पूछा? अच्छा, आपके पास 36 वोट है, आसिफ कलीम साहब के पास जो है 300 वोट है। सर ये ना सुनाए, मेरी सुन ले, ये ना सुनाए मुझे अल्लाह ताला ने जो देना मुझे मिलेगा, मुझे मसला नहीं है। नहीं, मजाक कर रहे हैं। रब साहब आपका माशाल्लाह, ये इसलिए वो क्या नाम है, दीजिए सरमद बोले। मैंने कहा कि रब साहब माशाल्लाह आपके बड़ा अच्छा वो था। अगर मेरा वोट होता साउथ जोन ए में तो आपका होता। आपने एक बड़ी अच्छी बात की, वो मुझे पता है। हाँ, नहीं, आपने वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एकेडमी की बात की, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की कि एकेडमी और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, और आपके पॉइंट्स को मैं एग्री करता हूँ। एक चीज़ जो आपने भी जिक्र किया कि वो है ओवरसीज मेंबर्स का इंटरेक्शन। मैं भी पुराना काउंसिल मेंबर रहा हूँ, हमारे वक्त में इतना नहीं था। अब ये कम्युनिकेशंस की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अभी इंटरेक्शन काफ़ी बढ़ गया और ये बढ़ेगा। और ये बड़ी पॉजिटिव बात है कि 30% जो हमारा ओवरसीज मेंबर है, ज़्यादा ही होगा क्योंकि मेंबर्स हमारे एड्रेस चेंज नहीं करवाते, तो ये अच्छा इंटरेक्शन और ये इन्वॉल्व रहे हैं। क्योंकि हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ मेंबर्स जा रहे थे, वाईकेप की मेंबरशिप छोड़ रहे थे, मगर मेरा ये ख्याल है कि लॉन्ग टर्म में जो भी काउंसिल में आएंगे उन पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो व्हाट हाउस है कि आप जो है ओवरसीज की वोटिंग और उस पे बस एक छोटा सा ब्रीफ बता दें कि आपके क्या ख्याल में नॉर्थ और साउथ की अलग अलग सीटें होनी चाहिए, एक सीट क्या, तो ब्रीफ सा बता दें। मैं इसमें थोड़ा सा इनपुट दे दूंगा, बड़े शायद कोई कंट्रोवर्शियल बात भी हो जाए, तो इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज होती हैं तो एक चलो आखिरी 3 दिन पहले मेरी तरफ से भी सही। ये मतलब मैं 2 महीने से मैं एक बात सुन रहा हूँ, ठीक है, कि जी वो प्रेसिडेंट 2 साल का हो, प्रेसिडेंट 1 साल का हो, 4 साल का हो, उस पर कमेंट करो, ये करो, वो बातें होंगी। मुझे सिंपल एक बात का जवाब दो, जब ये पुराने हमने जमाने में माजी में कोई चीज की, उसकी एक रैशनल होती है। ये काउंसिल नॉर्थ और साउथ की काउंसिल है क्यों? मेरा पहला फंडामेंटल सवाल ये है कि व्हाई वी हैव अ नॉर्थ एंड साउथ काउंसिल, व्हाई कांट वी हैव अ यूनानिमस काउंसिल? आपकी एक मेंबर हो, वो सबको वोट करे काउंसिल, तो भाई मैं नॉर्थ वाला क्या मेरी बात नहीं सुनेगा? या साउथ वाला, मैं साउथ में बैठा हूं तो मैं नॉर्थ वाले की बात नहीं सुनूंगा? मैं इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब 20-22 करोड़ की आवाम है, 12,000 आईकैप के लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 साल में 2 लाख 20-25 हजार मेंबर बढ़ के लाख 1.5 लाख 4 साल में और हो जाएंगे। उसमें से आप पास करोगे 500-500 करके तो 14-15 हजार मेंबर्स होंगे। यही है ना विजन, और क्या है? 15,000 मेंबर्स होंगे। अब 15,000 मेंबर के लिए मैं ये दो पूरा में एक वो स्ट्रक्चर लेके आऊं, अखबार में इश्तेहार दे रहा हूं कि हेड ऑफ नॉर्थ चाहिए, हेड ऑफ साउथ चाहिए। यार पहले तो ये बताओ ये है क्यों, पहला सवाल। अब उसके बाद अगर आप देखो कि अगर आप रिकम्पोजिशन देखते हो काउंसिल की, तो पहले इस पर डिसीजन लो कि डू वी नीड कि जी 3 टर्म्स पहले वहां का प्रेसिडेंट होगा। आप तो खुद रह चुके ना काउंसिल में, यू हैव एन आइडिया कि जी काउंसिल का नॉर्थ के 2 टर्म्स होंगी, साउथ के 2 टर्म्स होंगी, 3 टर्म। पहले ये इसकी रैशनल है क्या? उस जमाने की बनी हुई चीजें हैं जब ना इंटरनेट था ना व्हाट्सएप था। आज आप, ये व्हाट्सएप है, ये मोबाइल है, मैं अभी इसमें करूं,
मैं 1000 लोगों को 5 मिनट में अप्रोच कर सकता हूँ। तो अब मेरे पास जब ये टेक्नोलॉजी है, जब मैं लोगों से बात कर सकता हूँ, जूम कॉल्स कर सकता हूँ। आज काउंसिल की मीटिंग कहते हैं जी जूम पे नहीं हो सकती। वो मुझे मुझे कुछ दिन पहले किसी काउंसिल मेंबर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया ये बात। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई हम ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ये मतलब मेरी समझ में नहीं आया। तो बहुत सारी चीज़ें हमें वो गवर्नमेंट के माइंडसेट से निकल के प्रोएक्टिवली पब्लिक सेक्टर वाले जो प्राइवेट सेक्टर का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें आकर करनी पड़ेंगी, नंबर 1, अगर प्रोफेशनली हमें चीज़ें करनी है। दूसरा, आप किस तरीके से कंपोजिशन को लाएंगे कि जो वुमेन सीट भी आप कुछ करेंगे, आप ओवरसीज की भी करें। पहले ओवरसीज की नेटवर्किंग इंप्रूव करें। मे बी यू कैन हैव अ प्लेटफॉर्म। मैंने एक में पेपर जो बना दिया था, 1 पेजर, जो मेरा सर्कुलेट हुआ भी है काफी वाइडली। मेरा उसमें था कि यू कैन हैव अ प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म पे लाके आप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएं और ओवरसीज मेंबर्स को इंकरेज करें कि उसमें आपको लाना पड़ेगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी ये किया है, डिजिटल पाकिस्तान आया, रोशन डिजिटल आया, उसके बाद आज हाउसिंग तक में वो जितनी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट हो रही है इस वक्त पाकिस्तान में, इट्स ऑल फ्रॉम ओवरसीज। इवन रजा बाकर वाज मैंडेटेड दिस पॉइंट बाय इमरान खान कि आपको ये चीज करने की जरूरत है। अब अगर ये चीजें नहीं होंगी तो ओवरसीज मेंबर्स को आप लूप इन कैसे करेंगे? वो एक टेक्नोलॉजी का नेटवर्क है, एक एक्सपीरियंस का नेटवर्क है इंटरनेशनली, जो वो लाके यहाँ पे आपको रेप्लिकेट कर सकते हैं और लोकल मेंबर्स को, ओवरसीज को हेल्प भी कर सकते हैं। प्लस आपको तो प्रमोट करना पड़ेगा ना। देखो, अगर यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं है तो लोग बाहर जाएंगे। आपको तो एक मैकेनिज्म ऐसे लेना है कि वो जो बाहर पहुंच गए हैं और जो एक लेवल पे हैं, तो यहाँ वालों के लिए एज ए स्टेपिंग स्टोन को प्रोवाइड करें, हेल्पिंग हैंड दें, तो एक चेन बने ना। यू हैव टू हैव ये। उस चेन को बनाने के लिए आपको नेटवर्किंग इंप्रूव करनी है। सबसे पहले नेटवर्किंग इंप्रूव करने के लिए आपको एक, या तो एक कॉमन, मैं ओवरसीज चैप्टर की बात करते हो, उस चैप्टर की रिप्रेजेंटेशन रखें। अदरवाइज यू कैन हैव अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म कि आपकी एक कंसोलिडेटेड वेबसाइट हो जिसमें आपके मेंबर्स की लॉगिन का एक तरीका हो, उनका डेटाबेस हो, रिपोजिटरी हो, वन कैन एक्सेस। एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ मेंबर कनाडा के मेंबर को एक्सेस कर सकता है, पाकिस्तान का मेंबर कनाडा के मेंबर को एक्सेस कर सकता है। वो एक रेसिप्रोसिटी हो, लोग आपस में बात करें तो नेटवर्किंग इंप्रूव होगी। उसके बाद आप आइडिया लेके आए, और जब ये आइडियाज आ जाते हैं उसको फिर आप इम्प्लीमेंट करें। गोइंग फॉर दी सीट, जो सवाल आया और मुझे यासिर ने भी भेजा था कि ये एक सवाल पूछेंगे, मुझे ये बताओ कि पहले तुम, मुझे इस सीट से पहले जब तक मुझे ये सवाल का जवाब नहीं मिलेगा कि व्हाई वी नीड हैव अ नॉर्थ एंड साउथ काउंसिल, मैं उस सीट पे कमेंट नहीं कर सकता। मतलब फिर वो कहो कि नॉर्थ और साउथ की सीट दो, फिर कहो जी मुझे इस्लामाबाद की सीट दो, फिर मुझे खवातीन वहां की भी खवातीन की सीट दो, क्या वहां की खवातीन नहीं है क्या? फिर साउथ की खवातीन की क्यों होती है? मतलब ये खवातीन की ये सब बातें बड़ी अजीब सी हो जाएंगी। तो होगा ये कि 15,000 लोगों की काउंसिल में जब मुझे काउंसिल में डिसीजन मेकिंग चाहिए, वो आप नहीं कर पा रहे हैं। तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड काउंसिल। जो ये रैशनल जो पुराने हो चुके हैं, कुछ चीजों को हमें दोबारा देखना पड़ता है। कुछ चीज अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जमाना बदल रहा है। वो मैंने अभी 2 दिन पहले रिजवान को एक इंटरव्यू दिया, अगर आप उसमें 5 मिनट का देख लीजिएगा। मैंने उसमें यही बात की थी कि भाई देखो, अपनी चाल आपको बदलनी पड़ेगी, जमाने की चाल के साथ मैनेज करना है। अदरवाइज जमाना अपनी चलेगा, आप अपनी चलोगे, कहीं पहुंच नहीं पाएंगे हम। सिंपल। रब साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की, मेरी दिल की आवाज है, मैं आपके आसिफ साथ हूं। कलीम, आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रब साहब, ख्वाजा आसिफ जी दुबई से। मेरा सवाल आपसे ये, आपने अभी एक जिक्र किया था कि आपके पास कुछ आइडियाज हैं टू इंट्रोड्यूस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इनटू पब्लिक सेक्टर एंड गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप, कि हमारे अकाउंटेंट्स उन 400-500 पोजीशंस पे क्यों नहीं है जो पब्लिक सेक्टर की टॉप नॉच कंपनीज हैं। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है, क्या विजन है आपका, ये कैसे पॉसिबल है? देखो, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं, बल्कि 3 एस्पेक्ट्स आप समझो। क्योंकि मैंने मतलब जितनी भी मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके साथ मैं किसी ना किसी लेवल पे इन्वॉल्व रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ माय ट्रांजैक्शन सर्विसेज। प्राइवेटाइजेशन के लिए मैंने बहुत काम किया है। आई हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग कि मतलब पब्लिक सेक्टर का माइंडसेट किस तरीके से मैनेज हो रहा है। एज अ प्रोफेशन, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे आप कहो कि मैं पब्लिक सेक्टर में जाना है, मुझे इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, तो शायद मेरी प्रायोरिटी या प्रेफरेंस जो है वो मैं 2 दफा सोचूंगा। वजह एक तो, एक ओवरऑल पाकिस्तान का जो कल्चर है उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो बड़ी बैलेंस करनी पड़ती हैं, तो शायद एज अ प्रोफेशन आपको चैलेंज मिले। सेकेंड, गवर्नमेंट का जो वे ऑफ ऑपरेशंस होता है, एक तो उनके अपने पे स्केल्स होते हैं, स्टैंडर्ड पे स्केल्स होते हैं। और अगर आपने ज़रा भी उस पे स्केल से वो किया, और वो पे स्केल्स इतने डिफरेंट होते हैं
कि शायद वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वो मैनेज नहीं कर रहे होते या उसमें, तो वो एक वे ऑफ लोगों की जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो मैच नहीं कर पाएंगे उससे, नंबर 1। ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी आप उसको इम्पोर्टेंट है कि उसको देखें, अदरवाइज वो लोग दूसरे तरीके से, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होना चाहिए। जो प्रोफेशनली आपकी चीज हो रही है, जो एक एथिक्स के साथ आप काम करेंगे, तो वो जो लिखा हुआ है वो बहुत कम होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। सेकेंड है कि गवर्नमेंट में एक जो चीजें करने का तरीका है वो ये कि डिसीजन मेकिंग बड़ा डिले होती है, मतलब और बड़ा वो कवर करके करते हैं, और अगर आपने कोई इनिशिएटिव लेकर डिसीजन ले लिया तो यू आर प्रोन टू स्क्रूटनी, और वो स्क्रूटनी ऐसी होती है कि अगर आप किसी तरह का स्केपगोट बन गए तो आप फिर जो है ना वो नैब और FIS को जो है ना वो आप सारी जिंदगी आप वो कर रहे होंगे, और वो आप कोई भी लोग इस तरह नहीं कर सकते। आई हैव सीन एग्जांपल्स, और ये खाली प्रोफेशन की बात नहीं है, दूर के डोल सुहाने, ये बड़ा आसान एक मुहावरा है जो लोग कहते हैं, लेकिन बहुत सारी लार्ज अदर देन अकाउंटेंट्स भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की उन्होंने CEO की पोजीशन छोड़ के एक पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में उन्होंने नंबर 2 पोजीशन पे काम किया है। अभी भी रिसेंटली भी 1-2 लोगों ने इस तरह की एग्जांपल्स क्रिएट हुई हैं। तो गवर्नमेंट के ओवरऑल लेवल पे फिर आपके सामने हमारे एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी स्टेप डाउन हुए FBR में, उनको भी जो प्रॉब्लम्स आई, ये अपनी जगह पे प्रॉब्लम्स हैं। देखें, गवर्नमेंट की चीज़ों को समझना करना आसान नहीं होता। हाँ, SECP में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग गए, 1-2 साल में किया, बट वो करियर पोजीशंस नहीं होती फिर। और एक जो आप कहो और वो करो, तो वो बड़ी बात होती है। अनफॉर्चुनेटली वो इसी तरह होता नहीं है। प्लस गवर्नमेंट के लेवल पे जो इश्यूज हैं वो इतने ज़्यादा हैं डिसीजन मेकिंग के, समटाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस, कुछ चीज़ों में बड़े अपेरेंट इश्यूज होते थे कि ये करें और इस पर डिसीजन लें और आगे चलें, बट समटाइम्स वो इतना ज़्यादा उनको डिसीजन मेकिंग में टाइम लगता था कि वो लोग थोड़ा परेशान हो जाते थे, तो वो थोड़ा मुनासिब नहीं होता। लेकिन स्टिल इसको करना चाहिए। ICAP का एज अ प्रोफेशन सबसे पहले जो रोल होना चाहिए ना, हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करना चाहिए। हमें मतलब वो होता है ना कि एक अल्लामा इकबाल का शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भाई आप ICAP वालों को खुद उनको फोन करना चाहिए कि इस पे लाइक प्रोवाइड एज इनपुट, या हमारी एक कमेटी बन रही है स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक, एंड कम एंड गाइड अस। हम इनफॉर्मली बहुत से लोगों को बहुत सारी जगहों पे गाइड कर रहे होते हैं, एक ICAP के फोरम से कर देंगे तो क्या जाता है, और उनको अब्दुल रब साहब, हेल्पिंग हैंड रखेंगे तो हो जाएगा। आपको लगता नहीं कि ये ICAP का ही काम था, जो आप बोल रहे हैं कि ये एक फेलियर है कि हम उस लेवल पे नहीं पहुंच सके 70-75 साल में? देखो भाई, मैं फेलियर और इंटेग्रिटी, उसकी बात नहीं करूंगा, मैं ऑडिटर, नहीं करूंगा ये बात, मैं नहीं कह सकता। ऑडिटर, ये जो आपने कहा ना कि बच नहीं सकते, स्क्रूटनी हो जाती है, एज अ प्रोफेशन ऑडिटर को भी तो हमने बचाया हुआ है आज तक। कितने पार्टनर्स यार को मुझे आप जेल हुई है बताओ, सर? अभी एक लेटेस्ट अभी रिसेंट एक वो हुआ है पाकिस्तान में, देखो हैस्कॉल, नाम ले रहा हूँ मैं, सबको हाँ, पता है। हैस्कॉल है, सबको अब पता है। देखो अब क्या है, मतलब उसकी वजह से इन्वेस्टर गया, रेगुलेटर फंसा हुआ है, आपका जो मतलब अकाउंटिंग CA भी फर्म्स फंसा है हुआ है। उनका है, मतलब अब मुझे बताओ ये कैसे हो रहा है। उससे पहले 2 एग्जांपल्स मैं बता सकता हूँ आपको, उससे ज्यादा मतलब ओवर माय लाइक एसोसिएशन में देखता आ रहा हूँ। किसी ने मुझे कहा ये 2-3 नाम, मैंने कहा यार आप तो मोहिब से चलो ना, जब मैंने देखा हुआ है। फिर दीवान ऐसा का ही है। हुआ, फिर एक साथ हर 2 साल बाद 3 साल बाद एक आदमी आता है, सबकी जेबें खाली करता चला जाता है। व्हाट इज दिस? या आप, या तो फिर मुझे ये देखे ना। अच्छा, जहां तक आप फेलियर की बात कर रहे हैं, मैं इसको मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। मुझे पता है कि जहां तक लोग लेके आए हैं वो अच्छा है। एक बहुत अच्छी बात मैंने किसी से सीखी, जब जागो तब सवेरा। आज अगर आप जाग जाओगे, आज आपके लिए सवेरा है, सुबह आ जाए आपकी आंख खुली है, यहाँ से लेके चले चलो यार, कौन सा मसला है? मसला ये है जब जाग भी जाओ सर। नहीं तो जागो तब सवेरा। आज आप इतने लोग जाग के पूछ रहे हो, आज इससे पहले ये तो थैंक्स टू ये पेंडेमिक, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए कि पेंडेमिक के बाद तो आप लोग मेरे साथ बैठ के बात कर रहे हो, अदरवाइज तो कहाँ इतनी बातें हुई थी भाई, कहाँ इन लोगों ने इंटरव्यूज इतने लिए थे। ये तो दिस इज वेरी गुड, आप लोग बात कर रहे हो, समझ रहे हो, डेप्थ ले रहे हो प्रोफेशन में लोगों की। क्या नाम है, इट्स अ एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी गॉन के हमें समझने को मिला। और खास तौर पे जो आपने एक बात करी वो दिल को लगने वाली बात है, जो मतलब यानी कि देखें, बात से बात निकलती है तभी तो समझ में आती है कि बात लोगों के विजन है, मुख्तलिफ लोगों के हर एक के जो नॉर्थ और साउथ का जो है डिवीजन, ये काफी दफा डिबेट हुआ। और जो है ना ये देखें, फिर लोग मतलब ये आउट ऑफ द बॉक्स और इररिलेवेंट बात हो जाती है। लोग बोलेंगे यार ये क्या नाम, वो MQ की बनी फला जो है बलोच लिबरेशन फ्रंट। तो आप प्रोफेशनल इदारों को भी उसी ट्रेंड पे, उसी साइड पे लेके चले जाएंगे अगर आपने भाई ये मैं इतने दिन से 2 महीने से एक बात सुन रहा हूँ, ICAP जिसको इतवार की सुबह शुरू हो जाएगा, कोई जुम्मे को शुरू हो जाएगा,
वीकेंड पे कोई ना कोई कि जी 2 प्रेसिडेंट, 4 साल का प्रेसिडेंट, 2 साल का प्रेसिडेंट। मुझे ये बताओ पहले तो व्हाई वी नीड अ काउंसिल फॉर नॉर्थ एंड साउथ? ये मुझे बिल्कुल तो पहले इस बात अच्छा, का जवाब दो, मैं आपके उसको करते हुए आए लोग, बिल्कुल आज आप उसको एंडोर्समेंट क्यों करो, फिर आगे चलो ना। आसिफ इकबाल साहब। जी, आसिफ थैंक भाई। यू अब्दुल रब। माशाल्लाह आपके साथ थॉट्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा, एसआरसी में आपने 2 टर्म सर्व किए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 8 साल माशाल्लाह, तो यू हैव अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद आईकैप। तो एसआरसी का रोल आप क्या देखते हैं? एक पास्ट प्रेसिडेंट ने कहा कि एसआरसी को खत्म हो जाना चाहिए, एक भाई तो एक बात सुनो, क्या मेरा ये मैं आपको बताऊं, ये अनफॉर्चुनेट या फॉर्चुनेट जो भी है, मैंने अगर आईकैप के पोडियम में जब मैंने पहली स्पीच की थी, ये मेरे भी ख्वाब होते हैं ना, नन्हे नन्हे ख्वाब होते हैं। जब मैं पहली दफा इस इलेक्शन से पहले वाले इलेक्शन में मैं गया था, तो मैंने कहा था जी एसआरसी का रोल रीडिफाइन करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इस दफा उसके बाद वाले इलेक्शन में मैंने कहा कि जी जो हम कर रहे हैं वो इसी को इम्प्रूव करके करेंगे। मैंने काउंसिल में इस दफा, और जो मैंने अभी इस दफा एक पेज दिया है, मैंने मेंबर्स की नेटवर्किंग पे लिखा है कि एसआरसी को मोबिलाइज करना चाहिए। ये जो काम नेटवर्किंग का, डिजिटलाइजेशन है, भाई ये पार्टनर्स आ रहे हैं, इतने मेच्योर लोग आ रहे हैं। आप मतलब यूं समझो कि यार 35 साल से ऊपर के लोग आप एसआरसी में ले रहे हो, आप अगर और इलेक्ट करके ला रहे हो उनको, अगर उनको लाने के बाद इफ दे कांट हैव अ नेटवर्किंग डिजिटल ओवरसीज का अगर वो चैप्टर हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे वो? मतलब हम चीजें सब कुछ काउंसिल में क्यों रख रहे हैं? यार गवर्नेंस करो, आप अपने स्ट्रेटेजी वाली बात करो, आप काम बांटो। लीडरशिप एकेडमी जो है वो अगर आपका आईकैप का एक आदमी कर रहा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस दूसरा आदमी कर रहा है, तो एसआरसी को बोलो कि आप डिजिटल का प्लेटफॉर्म डेवलप करो, उनको 1 साल का टास्क दो। टाइम देखो, कोई भी चीज कहने के बगैर अगर विदाउट टाइमलाइन आप करोगे ना, नहीं होगी। ये भले आप किसी को भी काउंसिल में ले आओ, भले अब्दुल रब को कुछ भी ना दो, बिल्कुल लेकिन बेहतरीन। आप 8 लोगों में जब भी आप लेके आओ, उससे टाइमलाइन लो। यार अगर 1 साल में आपने डिजिटल का इम्प्लीमेंटेशन में लाते हो, तो आप करो। अगर एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो ओवरसीज मेंबर्स को नेटवर्किंग में लाने के लिए, तो उनके साथ इनपुट लो, उनके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म क्रिएट करो, फिर वहां से बात शुरू करो। ये एक एक चीज को पकड़ के, मतलब हम बीच में जो है ना, वो कहते हैं कि बहुत क्रूड उसमें कि जी वो चलती बस में सवार नहीं हो। यू हैव टू हैव फर्स्ट के सिरा पकड़ो, वहां से आप स्टेप अप करते हुए लेके आओ एंड गो विद द लार्ज गोल। बीच में आने से ना कुछ भी नहीं पता चलेगा, ना आपको इधर का पता ना इधर का पता। दिस इज थैंक इट। यू वेरी मच अब्दुल रब साहब। लास्ट सेंटेंस फ्रॉम यू। I wish all the members in ICAP success, stay blessed and safe. माशाल्लाह आप लोगों ने इतना टाइम दिया, और I can see आप जिसको भी लें बहुत ही एक समझ के करें वोटिंग। इस दफा बड़ी इंपॉर्टेंट है। काउंसिल हैज टू बी बैलेंस्ड। आई एम रिप्रेजेंटिंग द कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी प्रोफेशनल, क्योंकि मेरा काम ही दिमाग चलता है भी एडवाइजरी और प्रोफेशन में ही है। मैं नई चीजें करके क्लाइंट्स के लिए भी वैल्यू ऐड करता हूँ। दिस इज द रीजन कि आप अगर कुछ बात को वैल्यू ऐड कर सकें। अदरवाइज बैलेंस काउंसिल के साथ सारे लोग मोहतरम हैं, सारे मतलब 12 तारीख के बाद भी जिंदगी है, और ये सारे लोग मेरे साथी हैं। मतलब जो मैं किसी के साथ भी वो नहीं है, तो आप लोग को सब मेरा सब पता ही है, ओपन टू व्यू। तो बस थैंक यही यू। है। आप लोगों का थैंक यू वेरी मच, रियली अप्रिशिएट। और मिलने बेस्ट को ऑफ तो विशेस। खिदमत तो बताइए। ओके, थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ थैंक यू सर, आवर थैंक यू वेरी बेस्ट। मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।